I can say the expert for this session, for this workshop, Professor Rajendra Bharti sir. And what should I say about him? He's a facilitator of excellence, fellow of Institute of Directors, All India Management Association, Royal Aesthetic Society, England and Ireland, alumnus, and of course a resource person of IIM Ahmedabad, trained by WWQN London, and also he has trained CEOs, civil servants, and public leaders from like approximately 50 developing countries. Received several national awards in the field of institutional leadership and whatnot. And apart from all these, I'm very proudly say that he is my mentor, my management guru, and I'm very happy to have you, sir, in my life because you have given me this chance to excel in my life. So, first of all, thank you for joining us and Thank you, Shilpi. and accepting our this invitation. All the team, the whole team of Digital Mantra is especially thankful to you because nowadays, we see that webinars are going on. But जैसा मैंने भारती सर को बोला और सर ने कहा, webinar is a thing where only speaker used to speak. Everybody keep quiet, and whether they have learned, understand, or there is a possibility that समझ में आया या नहीं आया वो chances रहता है. So he suggested me instead of a webinar, it should be a workshop. So then we came to know, then we discussed and we find what should be the topic. And he suggested that it should be self-exploration. It's a wide topic. And as we can see, not only youngsters are there in our group, you'll find, sir, everybody, starting from the age of 18 till, I don't know what is the age group we are having. You may see one of my friend, Mr. Sushil Seth. Right, sir. He ran for last half a century. Right. In fact, he is a very, very senior learning manager. Right, sir. Maybe many things I have learned from him. And he is there to encourage me, most probably. Yes. But at every I want to encourage. Thank you, sir. At every moment of life, we have something to do. We have a future. Right, sir. In our life, that means there is a future, simply. Right? Right. So, dear friends, first of all, my hearty thanks to Shilpi. She is doing a great job, number of things she is doing, and broadly saying, she is helping investors to make their way, to, make a path of success for their life. And for that, she is preparing in many possible ways, I know personally. Not much, but this much I know. And I'm very proud of her, personally, whatever I know. So it's a good opportunity, and because she has provided this opportunity, so I am thankful to her. Thank you, sir. So first of all, let me now talk to everybody. Dear friends, it's not a lecture. It's not a speech. As she said, it's a workshop. So in workshop, you have to be active. My effort is, I don't know what I can really do, but my effort is to take up your questions and make you realize that you yourself have potential which can solve your issues and which can help you move forward. So it's not, you don't expect me to deliver a lecture. I'll deliver lectures, that is one of the skills. But the real thing is that somehow we move forward. Wherever we are, how do we move forward? So there, it is an interactive process, interaction all through. It is a facilitation program basically. And this facilitation program is to help you move forward and feel proud of you. So that is the main important thing. You feel proud of you. Already there are a number of things you feel proud of you. It's not that there is nothing to be proud of. There are a lot many things, and you have pride within your personality, within your life. But there is always a scope that you can generate more pride for yourself. Right. Okay, so that's a big thing. And I find one of my senior friends is there, in fact, Mr. Rathi, Dr. Ranveer Singh Rathi is there, I believe.
And friends, I tell you, he is the person who introduced me in management education. Wow, sir. Actually, I was in the training college of the bank, and he was the person who told me that, Bharti, why don't you take some sessions of MBA students? And then I went to Rohilkhand University, and then I took some sessions. This is how my teaching started. From a banker, I was later on transformed into a professor. So now there are just three objectives of this program. I'll take few minutes only. One objective is helping you unleash your power. The belief is, I believe and I'll make you believe that you have tremendous power within your personality. I read somewhere, I could not recollect it, that Albert Einstein, his brain was preserved. After his death, his brain was taken out. It was preserved. And many organizations in Europe and America, they did research on that. But still they found that this person was not able to make use of even 50% of his brain. So we can imagine that what was the brain power of that person. Right. Okay. So the power within a human being is tremendous. That I'll talk to you. And but realizing that is a difficult thing. Right? You can talk to me in English, Hindi, whatever you feel like. Okay, these two languages I can talk well. So you can feel free. Don't worry. Second objective is activating a thought process which can help you move on the path of excellence. What is excellence? Everybody wants to excel. In Hindi we call Adutiya. अद्वितीय से यहाँ मीनिंग नहीं है कोई और नहीं है, कोई somebody else cannot compete, बस हम जहाँ भी हैं उससे आगे जाना है. Better than the best. The best is unknown, but I have to become better than the best wherever I am. So that is another thing, path of the excellence with confidence and preparation. Most often we want to move on the path of excellence, but we are not well prepared. Let the process of preparation start here. Right. Okay, so that is the idea, that we start preparing for excellence, and ultimately we want that we empower you. This program is able to start the process of empowerment. आप अपना सशक्तिकरण प्रारंभ करते हैं. Okay, everybody wants to have power, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Have Right. power within your personality, have power within your brain, have power within your heart, okay? And start influencing the world. Interestingly, many people don't believe. Most people believe that we are a creation of the circumstances. It depends on the circumstances whether we are going to grow or not. We means I. So first thing I would say that I think this is very important to start, that please think as I, not we. Because otherwise this session will not be useful. Because the moment we start saying we, it becomes a general thing, as if I am talking about someone else. Because we includes many I's. Yes, sir. Essentially, we includes I, this I. Me, that is very important. You'll find that we say we should speak the truth. We should follow the path of honesty. We should work hard, isn't it? Right. We should have perseverance. We should have patience. We should learn. We should not be afraid of failures. We, the moment we is there is a feeling that it's for all. Let everybody do. Who will start? Right. To understand, it's a very simple thing. We is made of several eyes. Is it or not? Right. We is made of several eyes. Right? Right. And the best thing is that I start, what I can do, most often we don't have control. I don't have control on entire we. For example, class, for example, a community, for example, a district, or maybe a country. But at least I can, So I is the starting point. Second thing is I is the starting point.
if V is to be activated, individual I's are to be activated. Right. Okay. You might have seen in all the revolutions, whatever change came, you found that हम अकेले ही चले थे. Someone started. I remember when Gandhiji started that Dandi March. Actually, before that evening, previous evening, there was a meeting. And his colleagues were suggesting that, Babu, you should not have this march. So nobody was willing. So there was no resolution that Bapu should go on the march. But morning, Bapu decided the march. And he started moving. He started moving and people started following. Now this is how several eyes make the... Now the leading eye, you are leading yourself. If you are leading your ideas, you are leading your thoughts, you are leading your plans, then you are able to lead others. So Right. आई पे रहना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आई पे रहेगा और जनरल बातों पे मत जाइएगा. जो हम लोग बातें बहुत करते हैं, ऐसा होता है, ऐसा मानते हैं, ज्यादातर तो ऐसा होता है. But dear friends, believe that you are unique. You are not just like everybody. You are very unique. God has created every individual separately with a lot of passion. And in this unique personality, there are many, many positive things. Negative things creep in gradually when we enter the world. The environment of the world that is there to create some of the negative things. That's why you find when the child is born, the child is pure. So all positivities. But as the child starts experiencing the world, some of the negative things, enter into his or her personality. But if the inner personality is strong, then that person is able to reject those things. So my request is that please come closer to yourself. Come closer to yourself. बड़ी अजीब बात कह रहा हूँ. आप कहेंगे हम तो हैं अपनी जगह उसमें. But my request is that be yourself for that matter. Like I am seeing some of the things. Azima is there, Priti is there, Faizan Khan is there, Payal Hans is there. Many friends are there. Priti, whatever I am able to see, Rathi Sahib is there. Please feel about yourself. Okay? Right, sir. It's difficult, by the way. But your empowerment starts when you start from here. I am not saying that actually your success is when you relate yourself to others. That is also important. I will explain that. बहुत से लोग बोलेंगे कि ये तो इंडिविजुअलिस्टिक होने की बात है. इंडिविजुअलिस्टिक होने की नहीं है, वहां से शुरू करने की. Then you relate yourself to world, my family, my organization, okay, my community, my district, my country, like that. सर मुझे इस बात से याद आ रहा है, एक अनाउंसमेंट होता है फ्लाइट में. Right. मतलब ये इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन अगर बच्चे भी आपके साथ हैं तो भी मास्क का कभी भी अनाउंसमेंट होता है तो हमेशा यही बात होती है, फर्स्ट वेयर मास्क. मतलब फादर के लिए जो भी सीनियर है कि पहले आप मास्क पहनिए, देन डू टेक केयर फॉर योर चिल्ड्रन. क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं, आप कैपेबल हैं, तभी आप किसी दूसरे की हेल्प कर पाएंगे. Right. तो अगर आप सफल हैं तभी किसी दूसरे को जो है वो आप हेल्प करने की स्टेज पर आते हैं. सर कुछ क्वेश्चंस हैं आए, अगर आप अलाउ करें तो शुड आई स्टार्ट? Please start because questions should take more time. सर ये क्वेश्चन जब हमने वर्कशॉप का अनाउंसमेंट किया था तभी आ गया था कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन वर्ड्स उनके किसी आई विल नॉट नेम, मैं बस जनरल बात करती हूँ. जो क्वेश्चन मुझे याद रहा कि शुरुआत जब करते हैं किसी भी चीज की तो बहुत एनर्जी के साथ करते हैं, फिर धीरे धीरे एनर्जी का लेवल कम हो जाता है. रीजंस भी पता होते हैं, चाह भी रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं या मतलब मन हट जाता है. उनका जो सार था, जो द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि वी स्टार्टेड विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, विद एंथुसियाज्म, बट जब हम आइडिया नहीं होता, या तो हम पहले भाग जाते हैं रिजल्ट से पहले, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि इट वाज टेकिंग सो मच टाइम. सो उस सेंस में वो बात करना चाह रहे थे, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, या कैसे फोकस रहें. आई थिंक फोकस कैसे रहें किसी भी चीज को लेकर. ये क्वेश्चन कई यंगस्टर्स के साथ है और आपको जिसने भी भेजा हो. दो चीजें इसमें मैं कहूंगा. एक तो बात ये है कि आप जिसके लिए जो आपका अल्टीमेट पर्पस है, दैट्स व्हाई ड्रीम इज इम्पोर्टेंट.
आपकी टीम आपको ड्रैग करता है, वो आपको ड्राइव टू एक्सेल देता है। तो एक ड्रीम को अलाइव रखिए। तो व्हाट आई वुड से, आप जिस पर्पस के लिए भी काम कर रहे हैं, सपोज आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको एक्साइटमेंट दे सके, उसके बारे में आप सोचिए, रोज सोचिए। तो मैं हमेशा पार्टिसिपेंट से कहता हूं कि उसको लिखिए और एवरी मॉर्निंग उठते ही उसे सिरहाने रख लीजिए और उसे पढ़िए। I have to become an IAS officer. I have to become a doctor. Right? That will remind you where I need to go. क्योंकि जब आपको पता होता है, जैसे मैंने कई बार देखा है, आप टेम्पल्स पे अगर जाओ तो वो बहुत ऊंचे पर होते हैं टेम्पल्स, लेकिन आपको पता होता है कि दर्शन तो वहीं होंगे। दर्शन करने की जो आपके अंदर वो है, जो इच्छा है, वो इतनी बलवान होती है कि आप चढ़ते चले जाते हो, चढ़ते चले जाते हो। कोई आपको बताता है थोड़ा सा और है, फिर आप चढ़ते चले जाते हो। ऐसा होता है ना? राइट, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसे ही कोई भी काम हो, कोई और बताता है, लेकिन आप खुद को बता सकते हो, बिकॉज यू नो दैट। एक तो बात यह है कि हमेशा जहां आपको पहुंचना है उसको विजुअलाइज करके, विजुअलाइज करिए, सिर्फ सोचिए मत आई एम एन आईएएस ऑफिसर, आई विल बी कमांडिंग अ डिस्ट्रिक्ट, okay, I'll be responsible for law and order in a district, right? I'm imagining like this. Then action oriented होना चाहिए, action oriented. I get up, वो feeling चाहिए। That's why dream is very important. Dream को ऐसे अपने चेस्ट पे लगा के चलिए, number one. Number two, in all preparations, in all projects, you have to celebrate at small steps. इसलिए कहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को, जो भी आपका है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, राइट? राइट सर। और उसका एजेंडा बना लीजिए, एंड व्हेन यू आर एबल टू अकॉम्प्लिश दैट एजेंडा, यू सेलिब्रेट दैट, एंड सेलिब्रेट दैट विद द स्पिरिट. Let others not join you, but you celebrate, you jump, you cry, wow, I did, I was able to complete my agenda of the day. Right. Right. That is celebration. What it does, first of all, it approves that you did well. You are able to build a self-confidence. Secondly, it says that move on. What is the next? You think of the examinations. आप लोग MBA के हैं तो 2 साल का examination है, तो उतना tough नहीं है. लेकिन talk to the people who are doing 5 years course, medicine, or engineering, 4 years course. So I keep on meeting the boys and girls. In fact, I met a boy. He was successful in IAS at the 5th attempt. तो मैंने कहा तुमने बहुत हिम्मत बना के रखी। तो he said, sir, at every attempt I used to sit down and analyze what more I need to do. I never analyzed where I went wrong. Right. Okay, what more I need to do, and I used to start again. And slowly I reached there where I wanted to reach. Maybe sometimes your success takes more time, right? But when you celebrate at every occasion, then that spirit is maintained. हर दिन नया दिन है। आप ये चाहते हो कि हर दिन नया दिन हो, जी, आप करके देखिए, पर डेली एजेंडा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी यहाँ पर जो भी बच्चे हैं तो SBI PO के एग्जाम में बैठना चाहता है, और मान लो वो SBI PO का एग्जाम नवंबर में है, राइट? 5 months from. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन सा बोले? I could not recognize. Okay, you're welcome. तो वो जो 5 months आपके पास हैं, उन 5 months में प्रिपरेशन को, बट यू शुड अंडरस्टैंड, उसको डिवाइड करिए। लास्ट मंथ आप दे दीजिए प्री टेस्ट के लिए, एग्जाम से पहले सेल्फ टेस्ट लेने के लिए, राइट? और वो डेली लीजिए, वीकली लीजिए, और उनको सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेशन पे कुछ अपनी स्पिरिट्स तो लगाइए ही, कुछ छोटा मोटा खर्चा भी लगाते हैं आप, कोचिंग्स में लाखों रुपया दे देते हैं, तो व्हाई डोंट यू स्पेंड समथिंग ऑन यू? अपने पसंद का कुछ पहनिए, अपने पसंद का कुछ खाइए, कुछ भी करिए, उछलिए कूदिए जरूर। जी। क्या हो गया भाई? आई हैव बीन एबल टू अकॉम्प्लिश माय
day's agenda, I was able to succeed. In my self-test, I was able to score 80. Now the target is 85. Next weekly test, the target is 85. Could I explain it? Yes, sir. Yeah, please. एंड इसी से सर एक और चीज जुड़ रही है जो ये है कि जैसे आपने बोला कि ड्रीम्स को आप जो है वो जिए, मतलब यू लिव योर ड्रीम्स। अभी एक क्वेश्चन रिसेंटली आया है कि अभी यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कल कोई और ड्रीम आया था सर, आज कुछ और आ रहा है, परसों कुछ और हो जा रहा है। वी आर नॉट क्लियर। Let me clarify. Dreams are of two types. One of those which we see while sleeping. Yes. Those are nightmares. Right. Nightmares तो जो unconscious mind में खिचड़ी पकती रहती है उसका रिजल्ट है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहते हैं जी। पास्ट और कुछ विशफुल थिंकिंग भी नहीं है, वो रहते हैं। लेकिन ड्रीम होता है जब हम अकेले होते हैं और अपने बारे में सोचते हैं जी। What will I be 5 years down the line? Okay, जैसे मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ हैं मेरी एज के, वो सोचते हैं what will I be 10 years down the line? It's about health, it's about respect, it's about love. Lot many things are there which I need. Right? Where will I be? That is the dream. तो आप जो यंगस्टर्स हैं वो सोचते हैं because youngsters, those who are I would say generation Z जानते हैं? I think we belong to generation Z here. Majorly. You know, so those people, you have tremendous power, much more power than mine. My power is very much less than your power. अगर आप जनरेशन Z या जनरेशन Y से हैं तो आपके अंदर बहुत पावर है, राइट? तो उस पावर के हिसाब से you can dream of anything, यार. What do you think of? Right. Right, whatever. So there is a difference. One girl was asking me, imagination. It's not imagination. It's about you. I dream to become. So that is a daydreaming जिसको कहते हैं. जी सर. Daydreaming. तो वो क्या है? वो आपके दिल से निकल रही है. आपकी इच्छा है वो फ्यूचर के लिए, लेकिन उसका सेल्फ कमिटमेंट आपका शामिल है. ड्रीम को डिफाइन कर रहा हूँ. ये जो ड्रीम है ये आपकी इच्छा है जिसमें आपका सेल्फ कमिटमेंट शामिल है और ये फ्यूचर के बारे में है और आपके बारे में. राइट. ठीक है. ऐसे बहुत से ओकेजन्स आए हैं. मान लो when you were a student, you were attending a class. This has happened with me number of times. Okay. You were attending a class and you suddenly feel, I think I can teach better. I can become more effective professor. Maybe, बोलो. आता है नहीं? आता है. Something I would have explained better. Right. I have number of my students, वो मेरे डर के मारे ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन आता जरूर होगा. That is your dream. That is your dream. Right. Okay, that is your dream. उसको ड्रीम से एसोसिएट करिए. और जो ड्रीम होता है वो कई चीजों से बनता है. फिर आप जब शांति से बैठते हो, मैं उसे मेडिटेशन कहता हूँ, लेकिन मेडिटेट मत करो, चाहे कम से कम गिव योरसेल्फ 10-15 minutes alone, not in isolation, I am saying alone. और अपने बारे में सोचिए. जी. राइट. तब जब सोचेंगे तो वो ड्रीम आएगा. वो ड्रीम है. वो ड्रीम बदलता नहीं है. वो ड्रीम आप पकड़ के चलते हो. जैसे आई रिमेम्बर जिसने 9th में बोला कि मुझे ये करना है. I remember a child who was doing very well and his both parents had tried IAS and they were not successful. So he was thinking that my parents would like to make me an IAS officer. Right? Right. Story. So 9th class, when he saw the computers for the first time. He was very excited about computers. So he went to his father and said, Papa, मुझे IAS नहीं बनना है. Papa was surprised because Papa didn't tell this person anything कि तुम्हें IAS बनना है. But he could guess कि ये दोनों मेरे मदर फादर IAS नहीं हुए थे, तो मैं इनका बेटा हूँ, एक ही बेटा हूँ, तो ये मुझे IAS बनवाएंगे. But in the 9th class,
he said I have to work on computers. इससे ज्यादा वो जानता नहीं था उस समय, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये वो सब नहीं जानता था. So father would have been some intelligent person like you, said okay, you go ahead and work on computers. Right. So when he started thinking that in the 9th class, then he was studying his science that way. Coming to 11th class, he was studying his physics, chemistry, maths that way. Because I had to go to IIT. Right. Right. So that is your planning. So dream gives you a future plan. Earlier the better, but it's never late. It's never late. You can recall, some of you can recall कि आपने एक रात में किसी चीज की तैयारी की है and you were successful. That may be an interview or may be an examination. So late कभी नहीं होता है. जब जागो तभी सवेरा. राइट सर. इस प्रोसेस में जब हम बात कर रहे हैं तो एक चीज और जुड़ जाती है जो मुझे लगता है जनरेशन Z के साथ बहुत सारी हो रही है, वैसे किसी के साथ भी है, वो है ओवर थिंकिंग. ओके. या तो ओवर थिंकिंग भी एक बड़ा मतलब क्रिटिकल इश्यूज है जो हमें लगता है कि कई बार दिक्कत करता है. मतलब उनको उनके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देता है या कहीं और ही एज में या कहीं और ही एरा में ले जाता है. एक्चुअली in this time past 10-20 years, right sir, there is an explosion of knowledge. Okay. Yes. Knowledge on TV and knowledge on internet and knowledge from friends and relatives. Right. Information age. Boy and girl, they are confused. What to do, what not to do. Right. So there is a requirement with the parents, with the teachers, that they help them organize their career. अब करियर ऑर्गेनाइज करना है, अब सीधे नहीं मिलता है जी. वो ऑर्गेनाइज होता है दो चीजों से. वन इज दैट इंडिविजुअल चाइल्ड के अपना पर्सनैलिटी में एटीट्यूड और एप्टीट्यूड क्या है, दोनों आप लोग डिफरेंस जानते होंगे. जी. एप्टीट्यूड इज द इंक्लिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटी. राइट. क्या चीजें करना वो पसंद करता है, और एटीट्यूड है विलिंगनेस. ओके. लाइकिंग, दैट इज एटीट्यूड. तो उसका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में उसे सपोर्ट करें. दूसरा क्या होता है, दिस हैज हैपेंड विद मेनी पीपल ऑफ माय जनरेशन आल्सो. समटाइम्स सम यंगर पीपल फाइंड दैट they are doing well in many things. थोड़ा सा क्रिकेट खेल लेते हैं तो लगता है नेक्स्ट विराट कोहली मैं ही बनने वाला हूँ. राइट. थोड़ा सा पॉलिटिक्स में स्पीच दे ली तो लगता है अब हम ही MLA MP कुछ बन जाएंगे. फिर शायद थोड़ा सा और कुछ कर लिया, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लिया तो कहा अच्छा ये कर लेंगे. क्या होता है, वो बहुत पोटेंशियल है, रियली है वो, लेकिन अब उस पोटेंशियल को एक जगह कंसंट्रेट करें या सब में बांट दें. सब में बांट दें तो कुछ नहीं मिलता, एक जगह कंसंट्रेट करें तो कामयाब हो जाते हैं. राइट. तो मैं ये कहता हूँ, एक आप अपनी हॉबी चुन लीजिए. आप क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, हॉबी चुन लीजिए. वो हॉबी के लिए रखिए. जब आप रिलैक्स होंगे तब आप रिलैक्सेशन के लिए उसे एंजॉय करिए. आप माउथ ऑर्गन बजाते हैं, आप हारमोनियम बजाते हैं, आप डांस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उसको यूज करिए. और करियर जो लाइफ आपकी बनाएगा उसको आप अलग रखिए. ठीक है. राइट. तो ये उसको जब रखेंगे तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए अगर करियर बनाना है तो जो आपकी कॉन्सेंट्रेटेड पावर्स है वो उस पर लगेंगे. राइट. ये होता है. अच्छा सर, एक और क्रिटिकल इशू, बट जनरेशन Z को ये बहुत जरूरी बात है कि हम लोग मिलें, उनसे बात करें. राइट सर. और अपनी तरफ से बात करें, और पहले हमें उनके लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि जनरेशन Z की एक खास बात ये है कि वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको. राइट. हमें भी पता है, वैसे बोलते हैं हमें भी पता है. राइट. दैट्स एन इश्यू. Sir, one area is on. My dear friend Dr. Ravijit Singh is there. Welcome, sir. Please. Sir, एक एरिया और है जहाँ पर youngsters are facing some difficulties. That is emotional balance. Oh.
मतलब मे बी मतलब मुझे आइडिया नहीं है बिकॉज नाउ डेज दे आर फ्री इन द सेंस कि चाहे वो हॉस्टल में रह रहा हो चाहे कहीं बाहर हो, जैसा कि हमने बताया ना कि ही इज एंगेजिंग इन नंबर ऑफ थिंग्स, everything sir is there, मतलब they are engaged in love also, they want to establish their career also, at the same time they want to pursue their hobbies also. So how to remain emotionally balanced, because this is very important, I personally believe. Very true, very true. In fact, I met a friend in the train. I was coming from Mumbai 2 years ago, 2019, after attending one mindful leadership conference. So that friend told me that I am going to Kota. Hello. Oh, I said, why? He said, my son has gone in depression. Okay. And his son had gone to Kota to prepare for IIT JEE. लेकिन वहां वो डिप्रेशन में चला गया. ठीक है, तो मैंने कहा आपने कब भेज दिया? बोले हमने 10th के बाद ही भेज दिया. तो वो वहां 11th रहा, 12th रहा, जब तक वो एलिजिबल हुआ तब तक वो डिप्रेशन में चला गया. अरे अभी उसने एक भी एग्जाम नहीं दिया. Now there are many reasons. मैं एक चीज ये आपको बताऊं which is very scientific, कि जो adolescence की एज है that starts at 13. ओके, यस 13 की एज से जो पर्सनालिटी शेप लेती है वो आई वाली लेती है. डोंट टेल मी, आई नो इट. वहां पर आय जो शेयर करता है वो अपने बहुत बॉजम फ्रेंड्स, जो बहुत करीबी जिगरी दोस्त हैं, उनसे कहने शेयर करने में कोई रिस्क नहीं है, उनसे शेयर करता है. जी. हमें उसका वो दोस्त बनना पड़ेगा. तो पहले ये घर से शुरू होगा. और मैं कहूंगा कि हॉस्टल वाली एजुकेशन में ये टीचर्स को भी करना पड़ेगा. इट्स अ बिग इश्यू, इट्स अ वेरी बिग इश्यू. एवरी स्टूडेंट, हम उसे नाम ना दें कि मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ, मैं तुम्हारा ये लोकल गार्डियन. जहाँ ये आया उसके मन में कुछ और जाता है. आप अपनी प्लानिंग से उसे अडॉप्ट कर लीजिए, उसके साथ रहिए. राइट. ठीक है, स्पेंड सम टाइम, वो हमारे रूटीन का हिस्सा होना चाहिए. और कुछ ऐसा हो जाए कि अपने मन की कोई भी बात, उसको किसी से प्यार हो गया है, उसको किसी टीचर पे गुस्सा आ रही है, वो पहले आपसे शेयर करें. राइट. तो यू विल फाइंड कि आप, अच्छा फिर आप जब उसे डायरेक्शन दें, ये कभी मत कहिएगा बेटा तुम गलत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ. बिल्कुल मत कहिएगा. आई थिंक किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए. हाँ, उससे हमेशा कहिए आई अप्रिशिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है. फिर उसको एनालाइज करने दीजिए कि उसके लॉन्ग टर्म फ्यूचर में व्हाट इज एडवांटेजियस फॉर हिम और हर. राइट. तो जहां पे वो पहुंचे, कहिए अब इसे लिख लो. क्योंकि एक मैं बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ, खुद लिखने का और दिमाग में होने का. एक बात ध्यान करिए, सब बड़ों से भी कह रहा हूँ मैं, तो कह रहा हूँ, हम लोग काफी चीजों का मन करता है ना, और काफी चीजें हम जानते हैं, कोई बताने की जरूरत थोड़ी है. हम उससे बेनिफिट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम वो कर नहीं पाते. बिल्कुल ऐसा होता है ना. बिल्कुल सर. तो असली बात ये नहीं है कि हम जानते हैं, अरे हम भी जानते हैं, ये नहीं है. ये है कि करने लग जाए. तो करने लग जाए में बच्चों को भी है, अगर इन्वॉल्व कर लिया आपने जी, तो फिर आप समझिए कि वो कहाँ पहुंचेंगे कुछ पता नहीं. क्योंकि उनको लगता है ये मैं हूं. और उनको हमेशा कहिए, ये कभी मत कहिए कि देखो तुम गलत जा रहे थे, मैंने तुम्हें सही रास्ते पे लाया. ये कहा तो रुक जाएगा उसका प्रोसेस, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. हाँ हाँ. मैं आई रिकॉल वन ऑफ माई प्रोफेसर who joined as an assistant professor of marketing, and he had no qualification in HR. He was MMM, Master of Marketing. And today he is one HR professor of global standards, not Bareilly or UP or India standards, global standards. He is HR professor. But then how did it happen? It did not happen like this. कि मैं उसको बोलता है ये ज्वाइन विद मी, कि मैं डायरेक्टर हूँ, नहीं कुछ नहीं, क्लास लेनी है, जाओ स्लाइड्स ये ले लो, वो कर लो. आई गेव हिम माय स्लाइड्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग.
और लो क्लास लो जाकर के, ना तो क्लास इफेक्टिव होने वाली थी, बिल्कुल, ना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला था. It took a long time. We used to discuss a number of things from the newspaper, from here and there, journeys of many people, some CEOs. right. And he said, okay sir, कोई project दीजिए. When he was involved in a project, then he started liking HR. And now probably, I believe that he is far better professor of HR than me. Maybe job for him, but then fact is this. Yes. Right. So that does happen. That's not impossible. But that's a different trick. Same trick, somebody who is in job may ask me a question about the boss also. Yes. Yeah, please. Some other question. Sir, Aishwarya Gupta asked, I just want to ask that what about the dreams which don't let us sleep, but somehow we know that it's equivalent to impossible to make them true? Beautiful, beautiful. Okay, ऐश्वर्या, एक बात तो ये है कि ये जो वर्ड इम्पॉसिबल है वो आप जानते ही हो, इसमें होता है I am then possible. Because possibility and impossibility, these are all man-made. Right. Okay, these are all man-made. Because you would have seen number of things. अरुणिता कौन थी ये जो अभी हिल्स पे गई थी? हाँ, yes sir. Everest को उसने. एवरेस्ट पे गई थी. With a leg, and one is artificial. उसका लेग कट गया. Right sir. Then she decided. फिर वो जब ज्वाइन करने गई, ओके, एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग का स्कूल ज्वाइन करने गई बचेंद्री पाल का, तो बचेंद्री पाल ने कहा कि तुमने एवरेस्ट क्लाइंब करने की सोच ली तो 50% तो चढ़ लिया. सही है. जिसके पास एक टांग नहीं है वो एवरेस्ट क्लाइंब करने की सोच रहा है. इम्पॉसिबल. जरा सी बात होती है कुछ हो जाता है इम्पॉसिबल. हमारे जरा सी चोट लग जाए, यहाँ पे कुछ हो जाए, भगवान ना करे, इम्पॉसिबल. यार कैसे लिखेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अब तो गई गाड़ी. राइट. तो एक तो इम्पॉसिबल को पहले माने कि इम्पॉसिबल और पॉसिबल, ये सब हमने बनाए. बट हमें जब हम पॉसिबल की तरफ चलते हैं तो एक जर्नी है. पहले इसका फर्स्ट पॉइंट आप शुरू कर दीजिए. आप ये बताओ, अभी अनफॉर्चुनेटली कोविड रहा, बड़ी बड़ी खराब दवाइयां, इवन आई हैड टू टेक इंजेक्शंस. राइट सर. आप लोग हंसोगे, आई टुक इंजेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. एक वो लिया था उसका फर्स्ट डोज, उसके अलावा मैंने नहीं लिया जी. उसने बताया दिस इंजेक्शन इज स्पेशल, ऐसे मैं खाल पकड़ूंगा, फिर ये ढूंढूंगा, फिर ये करूंगा. आई वाज स्कैर्ड. यार मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता हूँ, होम्योपैथिक मीठी गोली खाने वाला. बट देन बिकॉज I have to be cured, I have to be all right, I have to get rid of this problem. Yes. तो इसलिए I made myself ready. You make it possible. You make it And there possible. was a young boy who was giving me injection, और उसने कहा सर आप देखिए तो मजा आएगा, ये नहीं आप उधर को मुंह कर ले. मैंने कुछ भी लगा दिया, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था. That was very good. The next time I had to take 7 injections. The next time कोई प्रॉब्लम नहीं, कल ही तो लिया है. खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है. तो आप शुरू कर दीजिए. आप बड़ी से बड़ी बात लीजिए. डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपसे कह रहा हूं, बड़ी से बड़ी बात लीजिए. अगर आपका कमिटमेंट है, कंपैशन है, और आप उसकी कॉस्ट पे करने को तैयार हैं. 3 C बता रहा हूं. कमिटमेंट, कंपैशन, मतलब दीवानगी है, आप उसे प्यार करते हैं. राइट. खाली ये नहीं चाहते हैं. और थर्ड है कॉस्ट. कॉस्ट पता क्या होती है? आज तो हमें अपने फ्रेंड की शादी में जाना है, हम ही तो नाच करेंगे. Can you sacrifice this? This is the cost. Right. I know a boy जिसकी थर्ड रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक थर्ड, IIT JEE में जी. और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ और उसने कोई कोचिंग नहीं ली, बस पोस्टल कोचिंग एक विद्या मंदिर क्लासेस की मंगाई थी. आई नो दैट बॉय, नाउ ही इज ए प्रोफेसर इन IIT. राइट. एंड तो क्या हुआ कि उसके रियल एक ही चाचा थे और चाचा के बेटे की शादी थी, who was very dear to him.
भैया भैया कहता रहता था, बहुत क्लोज। और उसकी शादी आ गई तो सब लोग बुलाने गए, हम भी वहां थे। तो वो आया एंड उसने सबको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और बोला सॉरी मैं मिस करूंगा। नहीं तुम्हें तो डांस करना है, डांसर भी बड़ा अच्छा है, ये करना है वो करना है। नहीं वो मैं बाद में करूंगा ना, भाभी जी से बाद में मिलूंगा, अभी आपको पता है ना मेरा IIT है। कॉस्ट इन मेनी वेज। उस दिन आप अपनी GF या BF को डेट मत दीजिए। आपका कमिटमेंट उधर है ना, राइट, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, यू नीड टू प्रायोरिटाइज, वो आपकी प्रायोरिटी में नंबर 1 है, तभी बात है, दैट इज कमिटमेंट। और आप उसके लिए दीवाने हैं, उसकी माइनर सी चीज आप करेक्ट करते हैं, स्पेलिंग करेक्ट करते हैं, आप उसका प्रेजेंटेशन करेक्ट करते हैं, आप सब चीज करेक्ट करते हैं, दैट इज दीवानगी, जैसे आप करते हैं। एंड देन कॉस्ट, ये सब कॉस्ट हैं। राइट सर। हम कम सोएंगे, खाना कम खाएंगे। जब हमें पढ़ना है तो हम खाना ज्यादा कैसे खा सकते हैं? नहीं मेरी तो ये डाइट है, डाइट थोड़ी कम करेंगे ताकि हम जग सकें, बिल्कुल, हम जल्दी उठ सकें। ये 3C अगर याद रखेंगे तो बिगनिंग हो जाएगी। अब बिगनिंग के बाद हम बोलेंगे इम्पॉसिबल से हम पहुंचेंगे वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वेरी डिफिकल्ट से और आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे इट्स डिफिकल्ट एंड वन डे यू विल गेट इट। तो आप पूछेंगे ओह आई गॉट इट। 2-4 साल बाद हमारे जैसे पूछेंगे सर मैम आपने कैसे कर लिया, ये तो बड़ा टफ होता है। अरे कुछ नहीं होता है। आप फिर हमसे बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता है, हम बता देंगे तुम्हें। राइट सर। तो स्टार्ट करिए और आई एम पॉसिबल लिख लीजिए, इम्पॉसिबल को, और फिर उसमें करिए। बिकॉज जो आपका एक सिंपल बात आप सोचिएगा, जो ये ह्यूमन बीइंग है, जैसे मैनेजमेंट में कहते हैं 4 M's होते हैं, है ना? यस सर। मनी, मटेरियल, मशीन, मटेरियल, मनी, मैन। राइट। अब जो मशीन है, मटेरियल है और मनी है, इन तीनों का पोटेंशियल लिमिटेड है। करेक्ट, डिफाइंड है और लिमिटेड है। Defined or limited है। You cannot buy something in 100 rupees which is worth 200. Correct. Similarly, a machine cannot work more than its capacity. Same way, the material cannot produce more than the weight of the material. Then talk about the 4th M. 4th M you don't know. Inexhaustible potential. कभी exhaust ही नहीं होता। जितना चाहे कर सकते हैं, but the work is not physical. अभी आनंद महेंद्र रिटायर होने जा रहे हैं, तो ही इज CEO ऑफ द ग्रुप, तो वो कोई पूरे ग्रुप का काम थोड़े कर रहे हैं। जैसे आप ग्रो करते हैं तो ग्रोथ में क्या होता है, इनिशियली ही तो आपके पास फिजिकल वर्क होता है, राइट सर। देन ग्रेजुअली क्या होता है, फिजिकल वर्क आपसे अलग होता जाता है। राइट, यू एंटर इनटू लीडरशिप जोन, छोटा लीडरशिप जोन, बड़ा लीडरशिप जोन। और जहां लीडरशिप जोन आता है तो क्या होता है, आपका सेल्फ एक्साइटमेंट काम करता है। राइट, वो आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता चलता है बोथ वेज। वन वे इज दैट पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू, सो इंटरडिपेंडेंस है एक। तो बात ये होती है, एक बात ये होती है यू आर क्रिएटिंग वैल्यू। अब जब हम कहते हैं कि भाई मुकेश अंबानी जी एशिया के रिचेस्ट आदमी हैं, या चलो ये आदमी की बात ना करें, रिलायंस की जो मार्केट कैप है वो लार्जेस्ट है, तो हमें अंदर से खुशी होती है। और क्या मिलना है, खाना तो वही खाना है ना। राइट सर। आप 1 करोड़ का खाना तो खा नहीं सकते जी, है ना। वो जो खुशी है, आई एम वाली खुशी है, तो वो उस खुशी के लिए, राइट, वुड आई एक्सप्लेन इट? Right, sir. She said that you have explained very beautifully, sir. Okay, thank you. And sir, next is like this is very like it is like मुर्गी पहले आई कि अंडा. This question is seems like that. कि future पहले से ही मतलब Nisha is asking कि our future is like decided or it is destiny or not. मतलब future is destiny में there are 2 things. Okay. Right. Something may be luck. Okay. Like many these spiritual people say कि हमारे कर्मों का रिजल्ट होता है कुछ, उसके हिसाब से जो भी विधाता ने तय किया है वो होता है, होगा, I don't know.
पर विधाता भी अपना विचार बदलने लगते हैं। ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आई हैव सीन दैट के लोगों की हाथ की रेखाएं बदलती हैं। एक्चुअली पामिस्ट हाथ का रेखा देखते हैं ना, वो बताते हैं। आई हैड ए क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उनको कुछ आता था तो वो अक्सर मेरा हाथ देखते थे, राइट? तो कुछ बताते थे कभी 10-20 साल में जब भी मिलते थे, तो वो रेखाएं आपके एफर्ट से बदलती हैं। यस सर, राइट। आप अगर किसी दूसरे, अगर गॉड को आपको हेल्प करना है तो हेल्प करने की डायरेक्शन तो आप बताएंगे ना। बिल्कुल। आप घर पे बैठे रहे और एकदम उम्मीद करें कि कुछ हैपन होगा, एक विंडफॉल होगा और आई विल गेट दिस, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इनिशिएटिव वहीं से, आप जब बताते हैं, आपके एफर्ट्स जब दिखाई देते हैं, तब योर लक सपोर्ट्स यू। एक्चुअली आई बिलीव लक भी हम खुद बनाते हैं। राइट। लक में एक अगर आप बिलीफ और जोड़ देंगे, क्योंकि एक मजे की बात मैं बताऊं, जो परमात्मा की बात है वो परमात्मा है ना, ईश्वर परमात्मा। जैसे आप हिंदी में जनरल मैनेजर को महाप्रबंधक बोलते हो, राइट। परम प्रबंधक बोल सकते हो और हायर लेवल का। इसका मतलब जो गॉड है वो एक सुप्रीम लेवल है ह्यूमन बीइंग का ही, आत्मा का ही। राइट है कि नहीं? जितनों भगवान की आप पूजा करते हो, उन्होंने जब एक्सेल किया और अपने आप को पूरी दुनिया से रिलेट किया तो हम भगवान की पूजा करने लगे। राइट है या नहीं? तो आत्मा से परमात्मा तक की जो जर्नी है, दैट इज जर्नी ऑफ एक्सेलेंस। राइट है नहीं? तो इसका मतलब वो संभावना है, संभावना तो वो सब है जो ईश्वर कर सकते हैं। राइट। तो हमारे एफर्ट से, हमारे सिंसियर एफर्ट से, हमारे गिव अप ना करने से, हमारे सेक्रीफाइस से, ठीक है, ये हमारी डेस्टिनी बनती है। पर डेस्टिनी में ऐसा ना लेकर के चलें कि मेरा डेजिग्नेशन यही होगा। बिल्कुल। क्योंकि बहुत वेज होते हैं जिससे आप इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपको पता है अभी इंडिया का CEA कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अखबार में इसकी फोटो थी इसलिए उसका नाम याद आ गया। बिकॉज यहाँ कई प्रोफेसर भी बैठे हैं, रविजीत जी भी बैठे हैं और आप हैं और कई प्रोफेसर हैं। तो he is a professor at ISB Hyderabad, CEA Chief Economic Advisor of India, Dr. Subramanian, Krishnamurthy Subramanian. Now how a professor, but as a professor अगर आप एक्सेल कर रहे हो, अगर वर्ल्ड में आपकी एडवाइस ली जा रही है, अगर कंपनियां आपको बोर्ड पे बुला रही हैं, बिल्कुल, अगर सरकार की कमेटियों में आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो आप तो किंग बन गए ना। बिल्कुल सही बात। अब आपका नाम ही किंग रखने की क्या जरूरत है? जब आपको चीफ सेक्रेटरी फोन कर रहा है कि मैम किस दिन मिल पाएंगी। राइट। मैंने उनसे बहुत लर्न किया है, प्रोफेसर थी इंदिरा पारेख है अहमदाबाद में, तो मैं कई बार देखा है मैंने, उनके रेजिडेंस पे कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स वेट करते थे, मैम थोड़ा सा टाइम दे दें। एक्सपर्टीज इस लेवल की है। एक्चुअली आपकी इंपॉर्टेंस तो इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट है ना। एक लेवल के बाद, 2-4 लाख के बाद तो फिर कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं होता है। बस ये फीलिंग होती है मेरे पास है इतने करोड़, मेरे पास है बड़ा मकान, मेरे पास है 4 कारें। बाकी तो आपको यही होता है ना कि मैं रिस्पेक्ट कितना हूँ, कितना करते हैं, कितनी है, राइट सर, है ना। तो ये होता है, तो इसलिए उसकी चिंता ना करें और आगे बढ़ें।